So yes, again, whatever like we have covered in the first 30 minutes of this part 1 Telegram live class of 23rd December. तो उसमें हमने लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स काफी अच्छे कवर किए हैं. उसके ऊपर ही शायद डेली एमसीक्यू टेस्ट एंड अदर थिंग्स विल बी देयर, क्योंकि उसके एमसीक्यूज भी क्रिएट किए गए हैं, दैट विल बी शेड्यूल्ड कंटिन्यूअसली. आज तो होंगे ही वो. And this is the second part. Welcome to the second part of today's Telegram live class. It will be also, let's say, a video and audio recording. वो available हो जाएगी YouTube पे and on Spotify पे भी हो जाएगी. तो next part of this booster, let me check कि हम उस कहाँ तक पहुंचे थे. ठीक है, एंटी फंगल्स एंटीवायरल भी हमने देख ली है. Yes, like welcome to the second part of this Telegram live class. शायद disconnect हो गया था, so that's why again I will just like try to let's say what I'm going to cover something. So this is a booster for the instruments, different type of surgical instruments we do have at our place. Clinics में होते हैं, minor OTs में होते हैं. So we are going to do that particular thing. So understanding the surgical instruments in dentistry, especially mucogingival surgeries, periradicular surgery, and exodontia. Okay. So hello everyone, welcome to the podcast part 2 Telegram live class जो हम कर रहे हैं right now on dental surgical instruments. I'm your host Dr. Mohan, and today we will be diving into the tools that make mucogingival surgeries possible. Okay, so we will also explore the mechanism and different like parts of elevators and forceps which are used in tooth extractions. So let's get started. Okay. So instruments for the mucogingival surgeries. So these are nothing but like surgeries which focus on correcting the soft tissue and the gingival defects. Okay, so the instruments used here are let's say कुछ delicate ही होते हैं and they are precise to ensure the minimal tissue damage. So here are some of the essential instruments. So scalpels and blades. So common types जो होते हैं number 15 और number 15C blades with barred Parker handle. So they are used for the mucogingival surgeries. And is like use क्या है उनका? So for precise incision and in gingival tissues. तो उसके related flaps भी अच्छा खासा topic है. What are the different types of mucogingival flaps? What are, let's say, their उनकी size क्या होती है, shape क्या होता है, और what's their use? कुछ में कुछ ज़्यादा benefit होता है regarding intention of that particular surgeries. तो वो शायद हम next part में cover करने वाले हैं. Then we have tissue scissors also. So उसका example है Castro-Vizzo scissor. So it is used for trimming gingival tissues and grafts. अब इसकी images शायद मैं फिर से post कर दूंगा, because instruments जो होते हैं image based question में क्या होते हैं वो पूछे ही जाते हैं. So scalpel blades number 15C, tissue scissors, especially Castro-Vizzo scissors. Then we have periodontal probes. For example, William probe होता है measuring for like sulcus depth and tissue recession जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है. Then we have sorry micro surgical instruments also. So needle holders होते हैं, fine forceps होती है, retractors होते हैं डिजाइन फॉर द सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज, जब एक्सेस और विजिबिलिटी का इट वाज लाइक डिस्कनेक्टेड. तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें हम बेसिक्स टू द रूट कैनाल एक्सेस करने वाले हैं, कि जिसमें देयर आर डिफरेंट टीथ अवेलेबल, कि जिसमें ऑक्लूजल केरीज है, प्रॉक्सिमल केरीज है, जहाँ पे सिंपली क्लास 1 क्लास 2 या कोई भी रिस्टोरेशन फील नहीं हो सकती इनिशियली. तो दोज टीथ आर नॉट एक्चुअली वेरी गुड, लेट्स से डेमो के लिए तो वो
अच्छे नहीं है, बट फॉर बेसिक टू द रूट कैनल एक्सेस तो वो काफी यूज अच्छे होने वाले हैं, विथ लॉट ऑफ लेट्स से रूट के डायलिसिस वाले भी है, उसमें कर्वेचर्स वाले भी है, एक्स्ट्रा कैनल्स भी है, एंड द पर्पस ऑफ दैट लाइक बेसिक्स टू द रूट कैनल एक्सेस विल बी फाइंडिंग द MB2 कैनल, जो बहुत बार डिफिकल्ट हो जाती है व्हेन वी आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग। बहुत बार केसेस सिंपली उसकी वजह से फेल हो जाते हैं। सो बेसिक्स टू द रूट कैनल एक्सेस जो भी रहेगा उसमें वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन द लाइक लोकेटिंग दिस एक्सेसरी कैनल्स। अगर आपको दिख जाए तो आप उसको फिर से फाइंड कर सकते हो। और एक्चुअल पेशेंट जब करते हैं तो लाइक वी डू हैव लॉट ऑफ लिमिटेड टाइम ऑन रिसोर्सेस आल्सो ना। पेशेंट भी कभी कभी बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम नहीं दे पाता है। And for an endodontist or let's say for a general dentist who is passionate about like doing a very good RCT, तो we do have a guilt कि हम इससे अच्छा और कर सकते थे। So that is the purpose of like enhancement courses, improvement हमें करनी ही है whatever like we are going to do with that particular root canal, ठीक है। So that was just like something away from topic, बट आई थॉट कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक निकला था तो लाइक द थिंग इज दैट बहुत बार ऐसे होता है लाइक 06, 08 या 10 दीज फाइल्स दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, असॉर्टेड और उसके रिलेटेड तो काफी एक्सपेंसिव रहती है, एंड दे आर यूज्ड इन वेरी फ्यू ऑफ द केसेस, नॉट एवरी टाइम यू वांट टू लाइक यूज दैट ना। एंटीरियर्स में तो बहुत ही कम यूज होती है, मोलर्स में कभी कभार यूज हो जाती है जब कैनल्स थिन रहती है, बट फॉर द सेकंड मोलर्स मैक्सिलर एंड मैंडिबुलर दीज आर वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर मोर फ्लेक्सिबल, जस्ट बिकॉज उसकी थिकनेस कम होती है, एंड पेटेंसी जब चेक करनी पड़ती है व्हेन देयर इज कर्वेचर डिस्टल रूट में जब होता है, या पैलेटल रूट में या मेसोबक्कल रूट्स में जो होता है, especially second molars में, so at that time these instruments are very very helpful. So that was about let's say enhancement courses, और enhancement courses में हम फर्स्ट ईयर के लिए भी करने वाले हैं। सिंपली उसमें हम कार्विंग्स जो रहती है, एनाटॉमी कार्विंग्स, उसके भी हम सेशंस क्या करने वाले हैं, कंडक्ट करने वाले हैं। एक्चुअली सिंपली आपको ब्लॉक्स प्रोवाइड किए दिए जाएंगे, कार्वर्स भी प्रोवाइड दिए जाएंगे, एक हैंड्स ऑन डेमो और थोड़ा सा लेक्चर रिगार्डिंग वीकेंड, जो भी हम 1 या 2 घंटे का सेशन करने वाले हैं फॉर द फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, तो उसमें सिंपली आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन रजिस्टरिंग एंडोडोंटिक एनहांसमेंट कोर्सेस और प्रोस्थेटिक एनहांसमेंट कोर्सेस, और फर्स्ट ईयर जो एनाटॉमी है, डेंटल एनाटॉमी, नॉट फर्स्ट ईयर, लेट्स से आपको कभी भी पढ़ना हो, जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, आपको आज फिर से कुछ करना है 1 to 2 आवर, आप सेशन देना चाहते हो फॉर योर लेट्स से मैनुअल, आपकी डेक्सिसिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो स्किल इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि उसमें काफी मेहनत लगती है फॉर कार्विंग्स ना, वैक्स कार्विंग्स जो होती है। तो बिसाइड्स लर्निंग डेंटल एनाटॉमी यू कैन ऑल्सो लाइक डू इट एज लाइक कुछ पैशन हो आपको डेंटिस्ट्री के लिए, तो आप उसको कर सकते हो, बिकॉज दोज वैक्स ब्लॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब कंप्लीट हो जाते हैं वो इतने अच्छे दिखते हैं लाइक so that was the thing. Let's move toward next part. तो क्रॉस सेक्शन डिजाइन देख लेते हैं। तो लेंथ हमने देख ली इन स्टैंडर्डाइजेशन, टिप साइज देख ली, साइज देख ली उसकी, ठीक है। अब कलर कोडिंग में देख ली। राइट नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रॉस सेक्शनल डिजाइन। सो वेरिएशंस इन डिजाइन सच एज लाइक स्क्वेयर, triangular or helical cross sections. Okay, so they influence flexibility and cutting efficiency, and also for the debris removal. So वो अच्छा खासा important है। So handle designs भी अलग अलग होती है बहुत बार। So handles are color coded obviously and ergonomically designed for a secure grip, और markings भी indicate होती है कभी कभी file length और ISO size की। Then we have let's say reamers also. So they have fewer cutting edges and they are primarily used for the enlarging canals. So reamers are used primarily for enlarging canals because they have fewer cutting edges.
while files, so they have more cutting edges compared to reamers, and they are used for shaping and cleaning of the canvas. We also have K files specifically, so they are twisted, square, cross sectionals जो होते हैं for increased flexibility and strength, or H files, so they are spiral, they have a spiral design for efficient cutting in push pull motion. So H file की जो motion होती है, so push and pull होती है. Okay. So rotary files भी रहते हैं. So rotary files जो होते हैं basically they follow the similar ISO size जो होती है, taper guidelines जो भी, so they do follow also. उसमें सिर्फ हाई स्पीड जो रोटरी मोशन होती है उसके लिए थोड़ा सा उनको मॉडिफाई किया जाता है. ओके, देन व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्टैंडर्डाइजेशन? सो बेसिकली इंटरचेंजेबिलिटी जो होती है, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स कैन बी यूज्ड seamlessly. It's also useful for the predictability because consistent performance during the clinical procedure is important. Okay, then there is a safety issue, so it reduces the risk of instrument separation और iatrogenic errors हो सकते हैं. कभी कभी पेशेंट्स रहते हैं पीड़ों के, दे आर क्वाइट, लेट्स से नॉट एंशियस बट दे आर क्वाइट एक्टिव, तो टंग बीच में ला देते हैं या माउथ ओपन क्लोज ज्यादा कर देते हैं, या बहुत बार तो सिंपली कुछ नहीं होता बट दे जस्ट लाइक एंजॉय द डेंटल ट्रीटमेंट एंड द डेंटिस्ट. तो वो क्या कर देते हैं उस टाइम, मोबिलिटी उनकी ज्यादा होती है, इंट्रा ओरल भी और एक्स्ट्रा ओरल भी. तो the one thing actually I remember when I was just like doing my clinical assistantship at GDC Mumbai, St. George में हम कर रहे थे, and one of my partner, room partner also, and one of my colleague, हम साथ में ही पोस्ट हो गए थे कि उस CA शिप के लिए. So he was posted at periodontics. मेरा शायद कुछ इनिशियल जो था ऑर्थो का था, so I was quite enjoying all the that thing. एक 2 महीने का था वो ऑर्थोडोंटिक्स का, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम being a dentist but like working as a assistant to orthodontist जो होते हैं वहां पे लेक्चरर्स प्रोफेसर्स, तो वो मैंने काफी एंजॉय किया था. सो एट दैट टाइम आई गॉट टू लर्न कि बेसिक जो वेल्डिंग्स होती है, मोलर बैंड्स होते हैं, उनकी ट्यूब्स होती है, वो हाउ दैट इज डन, ठीक है, वो मैंने सीखी थी वहां पे. उसके बाद में बेसिक बॉन्डिंग प्रोसीजर्स जो होती है और रिबॉन्डिंग भी होती है, या थोड़ा सा जो वायर रिप्लेसमेंट की थिंग होती है, लाइक वो मैंने वहां पे मुझे सीखने को मिली. एंड वी हैड अ वेरी गुड टाइम, ऑलमोस्ट 6-7 थे वहां पे. कुछ पिछले बैच के थे क्लिनिकल असिस्टेंट्स राइट नाउ, लाइक जैसे हम थे कुछ. तो दैट वाज अ वेरी गुड टाइम टू बी लेट्स से कि एक असिस्टेंट होना ऑर्थोडोंटिस्ट को, या सिंपली सिंपल केसेस भी है अगर, एंड यू आर लेट्स से वेरी मच हैप्पी टू लेट्स से एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स, तो उसके लिए वो GDC मुंबई सेंट जॉर्ज की क्लिनिकल असिस्टेंटशिप इज क्वाइट इम्पोर्टेंट. तो वहाँ पे रिमूवेबल एंड फिक्स जो भी प्रोसेसेस, नॉट प्रोसेसेस बस ट्रीटमेंट्स होती थी, दैट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस टू लर्न. तो उसके भी हम एंडोडोंटिक एनहांसमेंट कोर्सेस हम कंडक्ट करने वाले हैं. रिगार्डिंग कंपोजिट्स तो है उसमें, क्लास 1 क्लास 2 क्लास सभी कैविटीज के लिए, बट हाउ टू लेट्स से स्टार्ट योर ऑर्थोडोंटिक जर्नी, कि अगर आपको लग रहा है कि सिंपल केसेस आपके पास है एंड यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट टू डू दैट, अगर आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है क्लिनिकल असिस्टेंटशिप में कहीं भी, नॉट जस्ट लाइक गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, अगर प्राइवेट भी आप कोर्सेज कर रहे हो, तो बेसिक टूथ जो होती है उसकी एनाटॉमी, उसके डिफरेंट पार्ट्स ओरिएंटेड टुवर्ड्स द ब्रैकेट प्लेसमेंट, ब्रेसेस प्लेसमेंट, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्च, या जो भी कुछ एक्सट्रैक्शंस होते हैं इन पर्टिकुलर एक्सट्रैक्शन केसेस जो होते हैं, सो दैट वी विल बी आल्सो ट्राइंग टू कंडक्ट. ऑर्थोडोंटिक्स में हम शायद कवर करेंगे, दोज विल बी टोटली फ्री. आपको इनिशियली एक कास्ट दिया जाएगा सिंपली अपर लोअर का, या सिंपली एक ही कास्ट दिया जाएगा विद क्राउडिंग, और आपको बेसिक डिजाइन दिया जाएगा हाउ टू प्लेस दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट ऑन द टूथ, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट होती ही है. बिकॉज लॉट ऑफ टाइम वहां पे कैसे होता था, इनिशियली जब हम स्टार्ट किए थे तो एज वी वे न्यू, तो हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट कम था.
तो हमें सिर्फ जो भी लेट्स से सेपरेशन मोलर बैंड की प्लेसमेंट्स वही दी जाती थी। बॉन्डिंग हमको फर्स्ट वीक तक दिया नहीं गया था, वी वर नॉट अलाउड because we were told to let's say कि observe monitor the other assistants. We were actually already posted एक महीने पहले, और उनको देख देख के हमको सीखना था। and there were quite good professors and lecturers also. So I do remember कि एक सर थे, वर्धा से थे वो, and he was just like recently passed out and he was doing his bond at St. George PG के बाद में जो रहता है, and he used to teach each and every detail so perfectly ना। तो वो हरदम मोटिवेट ही करते थे कि लाइक मुझे ही नहीं सभी को करते थे ऑब्वियसली। तो उनकी वजह से ऑब्वियसली ऑर्थोडोंटिक्स जो मेरा असिस्टेंट शिप में सेशन था 1 मंथ का, शायद 2 मंथ का, सो आई क्वाइट एंजॉयड दैट एंड आई हैव लर्नड लॉट ऑफ थिंग्स। क्वाइट कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप, बिकॉज व्हेन आई वाज ग्रेजुएटिंग ना, तो उसमें ऑर्थो का डिपार्टमेंट था, बट लाइक देयर वाज नो पीजी सीट्स वहां पे नहीं थी, तो केसेस भी ऑब्वियसली सिर्फ रिमूवेबल के ही होते थे। एंड फिक्स्ड वी वर क्वाइट लेट्स से एक्साइटेड कि यार ये ऑर्थो की ट्रीटमेंट इतनी महंगी क्यों होती है, या वो बुक्स तो ठीक है छोटी थी, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट थिंग ना कि आपको 1-1.5 साल एक पेशेंट के डेडिकेट करना पड़ता है, फॉलोअप्स एंड दैट थिंग। तो वहां से मुझे लगता ही था कि ऑर्थो मुझे कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए, बट सिचुएशन अच्छी वहां पे थी, but like not every time that is possible. So that was my main intention to join clinical assistantship. और लोकेशन मैंने बॉम्बे क्यों चुना, because I knew कि वहाँ पे patients are also quite aware regarding this. एक तो एक ऐसी चीज थी कि like I was quite surprised कि जब मैं वहाँ पे initially गया, तो when I used to see that particular appointment cards ना, तो वो बैक डेटेड होते थे 2 साल पहले के, 1.5 साल पहले के। So just imagine a girl or a boy at the age of 10 or 11, she or he gets an appointment. उसको अपॉइंटमेंट मिलती है 2 साल बाद की। क्यों? क्योंकि लाइक ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स फॉलोअप्स आर इम्पोर्टेंट ना। तो नॉट जस्ट बिकॉज लाइक ऐसा नहीं कि उसकी ट्रीटमेंट लेट हो रही है, बट लाइक दैट इज सॉर्ट ऑफ लाइक ट्रीटमेंट प्लानिंग कि उसको डायग्नोस किया गया एट द अर्ली एज, एट द करेक्ट एज। Treatment plan was, let's say, written on that particular paper with all examinations, and he was requested to actually be present on that appointment. तो वो छोटे छोटे लड़के लड़के आते थे, उनके पेरेंट्स आते थे, एंड व्हेन आई यूज्ड टू सी दैट पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट लेटर, तो मुझे लगता था लाइक व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल एट एवरी प्लेस। अगर मुंबई में सेंट जॉर्ज में ऐसा होता है, हो सकता है कि लाइक पीपल आर सो मच इंटरेस्टेड इन गेटिंग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स, और उसके लिए वो 2 साल 1.5 साल पहले अपॉइंटमेंट्स लेके प्रेजेंट भी होते हैं। सो आई थॉट लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पेशेंट ना। एज अ पेरेंट भी कभी कभी फाइनेंशियल स्ट्रेसेस होते हैं, पीपल ऑल्सो डू डिस्कस विद अदर पेरेंट्स ना कि इतनी महंगी ट्रीटमेंट है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो एस्थेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट होता है। फंक्शन तो है ही उसका, बट सो दैट स्पार्क्ड वेरी वेरी लेट से कुछ मुझे लगा कि ऑर्थोडोंटिक्स कितना अच्छा है, मैं सीख रहा हूँ। एंड आई गॉट अ कॉल, लेट से मैं उस टाइम पे वो ऑर्थो की एक बुक थी शायद, प्रॉफिट, सो आई वाज आल्सो लाइक रीडिंग दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ principle used in that particular orthodontic treatment. So that is a very good thing if you are just like enrolling, thinking of enrolling to these enhancement courses. So have a very standard book, and while doing cases and while doing patients, you can also read that in order to improve your basic skills. So initially हम सिर्फ molar bands place करते थे, rebonding करते थे एक हाथ 2 tooth की, because putting all the brackets on all the teeth और सिंपली एक्सट्रैक्शन, हाँ एक्सट्रैक्शन दिया जाता था हमको प्री मोलर्स का। एंड उसकी भी एक ऐसी है कि लाइक आई क्लियरली रिमेम्बर कि एक तो टूथ ऐसा एक्सट्रैक्ट किया गया था कि उसको सिंपली पुश किया था मैंने, यानी आई जस्ट लाइक अप्लाइड अ फोर्स अपाइकली, उसको सिर्फ मैंने प्लेस किया, ग्रिप किया, एंड लाइक आई नो कि छोटे बच्चों में तो वो कोनिकल शेप का ही होता है। सो जो सिंपली पॉप अप हुआ, नीचे कुछ तो भी गिरा, आवाज आया, एंड व्हेन आई वाज जस्ट लाइक लुकिंग एट दैट फोर्सेप कि उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट टूथ इज एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड, वेदर लाइक आई हैव फ्रैक्चर्ड दैट टूथ और नॉट, वो भी मुझे चिंता थी कि इनिशियल क्लिनिकल असिस्टेंटशिप में इंप्रेशन अच्छा करने के लिए स्टाफ पे, इन ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर पेशेंट्स, तो अच्छा चीज होनी चाहिए।
सो दूसरी एक चीज उसमें क्या हो जाती है, लाइक एक्सट्रैक्शंस आर वेरी इजी फॉर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ना, बट समटाइम्स उस टाइम पे ऐसा हो सकता था कि वो टूथ निकल के लेट्स से रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता था, ठीक है। वो थैंकफुल कि वो नीचे गिर गया था, आई फाउंड इट ऑन द फ्लोर। और उसके बाद में मैंने काफी केयरफुली सीखा कि सिंपल एक्सट्रैक्शंस जो होते हैं हम, जैसे डेसिडियस है, बैडली केरियस के जितने केयरफुल करते हैं, या जिसकी रूट कैनल हो चुकी होती है, बट सिंपली ऑर्थोडोंटिक एक्सट्रैक्शंस दे आर आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये उसकी भी एक टेक्निक होती है अलग, सो दैट वी आर आल्सो गोइंग टू कवर इन बेसिक ऑर्थोडोंटिक कोर्सेज बिसाइड्स बॉन्डिंग। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तो हम करने ही वाले हैं बेसिक उसमें स्लाइड शेयर्स। सो दैट वाज रिगार्डिंग लेट्स से एनहांसमेंट कोर्सेज, ऑर्थो का भी, प्रोस्थो का भी, एंडो का भी, ओके। सो बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दैट, ब्रैकेट प्लेसमेंट्स, बॉन्डिंग, रीबॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स यूज। वहां पे शायद कुछ एक ओल्ड वन वाली जो थी जिसमें सिंपली पिन अटैच की जाती थी, सो दैट वी हैव आल्सो लर्न। वो एक्चुअली अभी यूज नहीं होती, बट दैट दोज लाइक ब्रैकेट्स आर क्वाइट लेस एक्सपेंसिव ना, तो उसको मिनिमम चार्जेस में कम कम कर सकते थे। लाइक एमबीटी वाले जो है लाइक दे आर एक्सपेंसिव, तो उसकी ट्रीटमेंट कॉस्टली जाती है, बट बोथ थिंग्स दैट वी विल बी ऑल्सो देयर। शायद आज का कुछ ज्यादा हो गया टॉपिक के रिलेटेड। डेंटल का है तो ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू बी वेरी लॉन्गर सेशंस, और दे वोंट बी एक्चुअली रिलेटेड टू ओनली एमसीक्यूज और थ्योरी। इसमें हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस भी शेयर करने वाले हैं, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू शेयर दीज केसेस, दीज टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस, तो यू कैन सिंपली व्हाट्सअप मी। आपको टेलीग्राम लाइव क्लास के लिए एक पर्सनली इन्विटेशन लिंक भेजी जाएगी, जहाँ पे you can just like join the discussion panel and you can share the things or experiences just like I'm doing right now, besides studying and working. Okay. So let's move toward like rake angle, cutting edge, shape, blades and KNH file, because these are very, very important. No? So endodontic files such as K files and H files, they differ in their design, cutting mechanism, and applications. So here is an overview of the rake angle, cutting edge, and the shape of blocks or blades that are used in their construction. Okay. So K files, उसका rake angle क्या है? तो rake angle in K files is generally positive or neutral. So positive rake angle क्या करता है? It promotes effective cutting of dentin. Okay. While neutral rake angle, it provides a balance between cutting and scrapping, reducing the risk of excessive dentin removal. Okay. और cutting edges जो होते हैं K files के, so they have multiple cutting edges formed by the twisting of a square or a triangular block by the stainless steel wire, and these cutting edges are evenly distributed along the instrument to allow effective cutting and filling motion, ठीक है, filing motion in both push, pull and rotary actions. Okay. Then उसका square जो रहता है cross section, so it offers more strength but less flexibility. So K files जो होती है, they offer more strength but flexible ज्यादा नहीं रहते. Okay, वो then triangular cross sections वाले जो होते हैं, they improve flexibility also while maintaining the cutting efficiency. So, okay. H files, headstone files, so उसका rake angle जो होता है, so it also provides a positive rake angle which provides more aggressive cutting capabilities in pull stroke. Okay. So rake angle ensures cutting edges effectively. वो एक चीज हो गई. उसका शेप देख लेते हैं. So original blank block for an H file has a round cross section, so that is machined to create a deep spiral flute, and this design gives instrument a screw-like appearance, which enhances the cutting ability of a pull stroke. Okay. So that was about H file. तो ये तो काफी डीप वाला ही टॉपिक है. श्योरली वी आर गोइंग टू कवर लॉन्गर सेशंस में, हम उसको कवर करने वाले हैं. डायग्राम से उसकी शेयर की जाएगी. सो सी यू सून, गुड बाय. थक भी गया हूँ.
आफ्टर लॉन्ग टाइम एक्चुअली 48 आवर्स के बाद में मैं वॉक कर रहा हूँ। क्या हुआ था एक्चुअली रिसेंटली, मैं एक अलग चीज शेयर करना चाहता हूँ कि लाइक व्हेन यू डू हैव फोकस, व्हेन यू डू हैव योर ओन बिजनेस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सिचुएशंस दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू योर गोल, जो भी कुछ आप कर रहे हो मोर इफिशिएंटली। So, in order to let's say be prepared for each and everything, you have to just like develop something. Communication skill आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि डायलॉग करते टाइम पे या बात करते टाइम पे सामने वाले को पता होना चाहिए कि like what should be actually talked or not, or whether talk like it's a good option to talk with someone right now or not, या हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, like somebody is not say like is not actually let's say कि stop, वो interrupt नहीं करना चाहता communication right now, but still he just like has somebody has like a very different goal. So 2 दिन मेरे ऐसा नहीं कहूँगा, like I won't say कि like that was the thing because I was busy in something else and I was not able to join the Telegram live class और दूसरी activity मैं कर नहीं पाया, because those things are also like important. So communication तो काफी important होता ही है, in patients, managing patients, handling patients, pre operative post operative भी तो important होता ही है. So that's इसके लिए शायद मैं आज I was just like quite excited to restart my that morning walk and session. Cloudy weather है तो आधा घंटा ज्यादा वॉक कर सकता था मैं, so I am just like doing it. So we have talked about that particular orthodontic sessions में ना. So doing a clinical assistantship or fellowship is quite good. Like I know कि शायद इसी मंथ में MAHS क्या करती है, clinical assistantships के लिए फॉर्म्स भी ले आती है. And when it started in the 2020 probably, first time when start किए थे, तो there were limited seats at GDCs. नागपुर में शायद OS की है, औरंगाबाद में ऑर्थो पेरियो की है फेलोशिप्स, बॉम्बे में शायद नायर में है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10 गवर्नमेंट क्लिनिकल असिस्टेंटशिप्स एंड फेलोशिप्स आर देयर, नॉट असिस्टेंटशिप, फेलोशिप सॉरी. एंड इन प्राइवेट कॉलेजेस ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से कुछ अराउंड 1000 तो नहीं होगी, लेस देन दैट, 300 400 मे बी द नंबर एग्जैक्ट, आई डोंट नो. तो वो फेलोशिप्स दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज लाइक नॉट एवरी टाइम यू आर प्लानिंग टू डू, लेट्स से कि आप हर बार ही पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते. समटाइम्स लाइक फाइनेंशियली भी काफी डिफिकल्ट होता है, समटाइम्स लाइक यू कांट डेडिकेट दैट अमाउंट ऑफ लाइक टाइम, 3 ईयर काफी बड़े हो जाते हैं ना. सो अनदर थिंग व्हाट यू कैन डू, सो दैट इज फेलोशिप्स. MAHS शायद इसी 1-2 महीने में शायद वो पब्लिश करती है. आई विल ट्राई टू जस्ट लाइक चेक आउट दैट. सो 1 ईयर का प्रोग्राम होता है, सिंपली गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस. और व्हाट दे डू एक्चुअली सिंपली डिफरेंट स्पेशलिटीज होती है ना डेंटिस्ट्री की, उसमें क्लिनिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग भी आ गई उसमें, ओके. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लांट, अगर 1 साल में आपको लेट्स से ओरिएंटेशन लेना है इम्प्लांट्स का, सो फेलोशिप इन दैट पर्टिकुलर इम्प्लांटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्थोडोंटिक्स का भी है, बट लाइक बेसिक एलिजिबिलिटी शायद उसकी MDS है फॉर ओरल सर्जरी, एंड फेलोशिप इन लेट्स से कि जो ऑर्थोडोंटिक्स की है. बट रिमेनिंग जितने भी कुछ सीट्स है फेलोशिप्स की, सो बेसिक एलिजिबिलिटी उसकी है BDS. So anybody who is recently pass out has completed internship, maybe like practice ही कर रहे हो since 1 to 2 year, and you are thinking of getting extra training, आपको clinical skill improve करना लगता है कि that is a very good option, so that is a very good choice. मैं उसके अपडेट्स डाल दूंगा जल्दी ही, because personally I think like time is very important ना. अगर आप 3 साल में जो पढ़ रहे हो या पढ़ना चाहते हो, if somebody some institutions or government is actually promoting that कि आप 1 साल में भी अगर if you are capable, if you are thinking that you should do that thing, तो आप उसे एनरोल करो. 1 लाख फी है शायद उसकी कुछ, along with like थीसिस डिसर्टेशन आपको सबमिट करना पड़ता है उसमें. इम्प्लांट्स में तो 20 30 40 इम्प्लांट्स आपको करने मिल जाते हैं. ऑर्थो में शायद MDS के लिए कुछ डिफरेंट उसमें फेलोशिप्स के टॉपिक्स है रिगार्डिंग क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट या क्रानियोफेशियल अदर डिफॉर्मिटीज जो होती है. So that is a more deeper topic for MDS ortho and MDS oral surgeons fellowship करना.
और जैसे मैंने कहा कि लाइक माइक्रो एंडोडोंटिक्स, वो भी एक अच्छा खासा ब्रांच है टू स्टडी। 1 साल में आपको बेसिक माइक्रोस्कोप क्या होता है, डेंटल माइक्रोस्कोप, यू गेट लॉट ऑफ आइडियाज। बहुत बार ऐसे होता है कि सिंपली आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इन योर डेंटल प्रैक्टिस डेडिकेटेड टू एंडोडोंटिक्स, तो माइक्रो सर्जरीज जो होती है पेरी रेडिकुलर या सिंपल लेट्स से कि परफेक्ट रूट कैनल करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसमें माइक्रोस्कोप तो आता ही है। सो दैट इज अनदर वेरी गुड कोर्स टू एनरोल। उसके बाद में शायद मुझे लगता है कुछ एस्थेटिक्स का भी उसमें है, कंपोजिट्स का भी है, सिंपली प्रोस्तो का शायद नहीं है, शायद उसमें बेसिक, बट आई नो वेरी वेल कि एमडीएस ऑर्थो और सर्जन्स कैन अप्लाई। बीडीएस के लिए यस ओरल रेडियोलॉजी का है उसमें, इमेजिंग का। सो डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स और सिटी हमारा सीबीसिटी जो भी चीजें होती है, सो यू कैन ऑल्सो गिव एक्सपर्ट एडवाइस आफ्टर डूइंग दैट। कॉन्स का तो जैसे मैंने कहा कि सिंपली कॉन्स का भी है, और माइक्रो सर्जरीज और माइक्रो जो एंडोडोंटिस होते हैं वो भी है उसमें। पीडो का भी है शायद उसमें, पीडो इन द सेंस लाइक जनरल एनेस्थीसिया जो भी होता है बेसिक यूनिट उसका, तो उसके कॉन्शियस सेडेशन का प्रोबेबली शायद उसमें है। आफ्टर डूइंग दैट यू कैन जस्ट लाइक ज्वाइन एनी फैसिलिटी जहाँ पे दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल एंड डेंटल यूनिट इज ऑल्सो देयर। सो वो एक चीज है। सो दिस फेलोशिप्स आर नथिंग बट लाइक वॉट एवर यू हैव लर्न बट यू आर नॉट एबल टू अप्लाई दैट इन योर प्रैक्टिस। इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट थिंग कि वॉट एवर यू हैव लर्न, यू वांट टू ऑल्सो जस्ट लाइक एक्सपांड दैट योर नॉलेज एंड प्रैक्टिकल जो भी आपको सेशंस करना है क्लिनिक्स में। सो दैट इज अ वेरी वंडरफुल थिंग। तो सी यू सून, गुड बाय। ये भी अच्छा खासा सेशन हो गया है 44 मिनट्स का। सो 45 + 30 ऑलमोस्ट 1 hour 15-20 minutes we have live today. So thanks for being there. रिकॉर्ड्स जल्दी आपको क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। See you soon, goodbye.